Welcome to the physics class. So, moving the chapter motion, today our topic is equations for uniform accelerated motion. Today our topic is uniform accelerated motion. So what are the equations for uniform accelerated motion? For this, first of all, let us discuss what is uniform accelerated motion. What is uniform accelerated motion? What is the meaning of accelerated? Accelerated means change in velocity. It means body is changing its velocity. It is time, it is velocity. Time is in seconds and velocity is in meter per second. When time is 0, velocity is 0. Time is 1 second, velocity 5 meter per second, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30. It means with time velocity is changing. Time के साथ साथ velocity change हो रही है, but equal time intervals में equal velocity change हो रही है. You can look at here, first 1 second में 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में भी 5, अगले 1 सेकेंड में 5, एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस एक्सेलरेशन है. अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन एक जैसी है, अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन निकालना चाहें सिर्फ इसमें 0 to 1 सेकेंड में, तो 0 to 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम इसमें निकालना चाहें अगेन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मींस एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसी है. दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन if the body is moving with increasing velocity which is increasing equally in equal interval of time. So this is called uniform accelerated motions, and when it means here acceleration is constant, or you can say uniform. Acceleration is constant, or but you can say that is uniform acceleration. Symbol of acceleration is A. Okay. Now, what are the equations for uniform accelerated motion? There are 3 equations for uniform accelerated motion. First is velocity time relation. It means first equation is called velocity time relation, that is V equals U plus AT. What is this? V equals U plus AT, where V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration, and T is time. So what is this? Velocity time relation. This is first equation for uniformly accelerated motion. What about second? Second is position time relation. Position time relation. Second is S is equal to ut plus half at square. Second equation is ut plus half at square, where S is displacement, U initial velocity, acceleration, T time. And third is called position velocity relation. Position velocity relation. Okay, that is V square equals U square plus 2AS. V square equals U square plus 2AS. So these 3 are the equations for uniform accelerated motion when the body is moving with uniform acceleration. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कब लगेगी? when the body is moving with uniform acceleration. अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो तभी ये इक्वेशन लग सकती हैं, अदरवाइज नहीं. ओके, सो इनको ड्राइव करेंगे हम. देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट graphical method is in our syllabus, that derivation
of these three equations by graphical method. Okay, so let us derive the first equation of motion. So first is now to derive v equals u plus at, first equation of motion by graphical method. By graphical method, there are different method, but graphical method is in our syllabus. Calculus method भी होता है, इसका integration method भी, but graphical method is in our syllabus. So we will do the derivation of first equation of motion by graphical method. All the three equations there will be a single graph. एक ही तरह का ग्राफ तीनों equations की derive करने के लिए बनेगा. So what is the graph? We have to draw a graph. Okay, that is velocity time graph. ये velocity time graph है. यहाँ आपके है time in seconds, यहाँ लेनी है velocity in meter per second. Time is in seconds, velocity meter per second. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है, लेकिन यहाँ ग्राफ है बॉडी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो नहीं है. इट मीन्स एयर टाइम एंड एयर वेलोसिटी. टाइम इज जीरो बट वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम 1 10, उसके बाद इंक्रीज एक्सेलरेटेड ही हो रही है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रही है. हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. पहले एक सेकेंड में 5, अगले एक सेकेंड में 5, अगले एक सेकेंड में 5, अगले एक सेकेंड में 5. ओके, सो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही, बट केस ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो. उस केस में हम ये करेंगे. सो अगर हम ग्राफ बनाएं, टाइम जीरो लें, यहाँ टाइम 0 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5. सो दिस इज 5 10 15 20 and 25. I am writing this 5 10 15 20 and this is 25. Okay, so let us meet the points. 0 पे 5 है, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. 1 पे 10 है, 2 पे 15, 1 पे 10, 2 पे 15, 3 पे 20 and 4 पे 25. So join these points, we will get a graph like this, a straight line graph. We will get a straight line graph. So this graph will be used to derive the three equations of motion. Okay, so now naming it as this is O, and from the point, एक बार मैं ये रीडिंग्स नहीं ले रहा, जनरल ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पे. So this is 0, this is A, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, that point is A. Okay, जहाँ तक ग्राफ जा रहा है, suppose यहाँ तक जा रहा है ग्राफ, this point is B. So draw a perpendicular from the point B. Draw perpendicular from the point B. This point is called C. जहाँ तक आपने ग्राफ का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, that point is C. और B के सामने वेलोसिटी वाली एक्सिस पे जो पॉइंट कट कर रहा है, that is D. Okay, O A से B तक ग्राफ बना with uniform acceleration, but initial velocity is not zero. B से परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो C, अगर यही वेलोसिटी एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो D. Okay, so there are some notifications and this is also A से भी एक इस B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, AE. अब ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, जो ये वेलोसिटी एक्सिस पे, इसका मतलब इतनी वेलोसिटी उसकी पहले ही है. ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है. ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u. सो OA इसके भी बराबर है CE. OA और CE इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. क्यों हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी लिया? क्योंकि ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. तो जिस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हो, मतलब अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती. ओरिजिन स्टार्ट नहीं हो रहा, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो, इसका मतलब ओरिजिन से लेकर वहां तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. सो दिस इज u. ये सिर्फ u बनेगा यहाँ से यहाँ.
नाउ जहां तक ग्राफ गया वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है फ्रॉम ओरिजिन। अब ग्राफ तो गया बी तक, बी के सामने क्या है डी, तो ए से बी ग्राफ गया, ठीक है, ए तक वेलोसिटी थी u, तो बी तक वेलोसिटी v हो जाएगी। सो ओरिजिन से बी तक मतलब बी के सामने वाले पॉइंट तक जो वेलोसिटी एक्सिस पे वेलोसिटी होगी दैट इज ओ डी, और ओ डी किसके बराबर है, ये पूरा बी सी के बराबर है। ओरिजिन से लेना हमेशा, वेलोसिटी इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ओरिजिन, दिस इज v फाइनल वेलोसिटी, दिस इज बी सी, दैट इज आल्सो v, दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि ग्राफ जहां से बॉडी चलना स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, जहां तक बॉडी जाती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी ओरिजिन से देखते हैं, जहां तक b तक गया, b से परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक्सिस पे वेलोसिटी होगी v, तो ये इसके भी बराबर है, तो ये भी v बनेगा। अब क्या है, o से c तक, ये है टाइम, जितना उसको टाइम लगा बॉडी को मोशन करने में, o से c a e के भी बराबर है, o c a इज इक्वल टू टाइम के बराबर है, दिस इज कॉल्ड टाइम, o c a e equals time, okay, so these some initial reminders you should know about this। इसी के बेस पे हम इक्वेशंस को सोल्व कर पाएंगे, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो, चाहे सेकंड और चाहे थर्ड। जिसको ना समझा हो एक बार इन रिमाइंडर्स को दोबारा देखिए और फिर आपने ये इक्वेशन आगे करनी है, ओके। सो लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन, व्हाट वी हैव एज एक्सेलरेशन इज change in velocity by time, as acceleration is change in velocity by time, but from the graph velocity time graph acceleration का क्या फॉर्मूला पीछे कर चुके हैं velocity time graph में, slope of graph, acceleration कैसे निकलती है, slope of graph, ग्राफ पे जो स्लोप होगी वो acceleration बताएगी आपको, ओके। और acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, perpendicular by base। It means from the graph acceleration can be calculated as slope of graph and slope of graph can be calculated as perpendicular by base। So acceleration is a, perpendicular और base तो right angle triangle में होते हैं, तो जो right angle triangle बनेगी ग्राफ से नीचे, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक ग्राफ खत्म हो रहा है, a से b तक ग्राफ है, तो इसके जो right angle triangle ये बन रही है पूरी तो ट्रेपेजियम है, ये ट्रायंगल बनेगी a b e, ट्रायंगल a e b, ट्रायंगल हमने ले ली यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है ए ई बी, ओके। सो व्हाट विल बी दिस, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी ई, एंड व्हाट अबाउट बेस, बेस इज ए ई, परपेंडिकुलर बन गया इस राइट एंगल ट्रायंगल का बी ई, और बेस क्या बना ए ई, परपेंडिकुलर इज बी ई एंड बेस इज ए ई। सो व्हाट विल बी दिस नाउ, पुटिंग दी वैल्यू, बी ई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है अभी, देख लो जरा ध्यान से, बी ई कहीं भी नहीं, पूरा तो पता है बी सी, लेकिन बी ई की वैल्यू नहीं पता हमें। सो ए इज टाइम, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी ई, ए और टी मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट विल बी बी ई, दैट इज ए टी। ये जो बी से ई तक की वैल्यू है दैट इज ए टी, ओके। So now this is the equation number 1. So now look at the graph. This BC can be divided into two parts. जो BC है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या हम इसको BE plus EC लिख सकते हैं? BE अपर पार्ट एंड EC, BE और EC से मिलकर पूरा BC बना। So BE plus EC, BC can be written as BE plus EC। So what is BC? BC की वैल्यू हमने हमारे पास ये है पूरी V। What is BE? B की वैल्यू हमें ये निकाल रखी है 80 प्लस EC, EC मतलब CE की वैल्यू क्या है U। So what will be this? V U पहले लिख रहा हूँ 80 बाद में, V equals U plus 80। This was the first equation of motion, that is V equals U plus 80, V equals U plus 80। So we have derived the first equation of motion। So look at here again, if we want to derive the equation for uniform accelerated motion by graphical method, first of all we should know the graph। Here graph will be velocity time graph with non-zero initial velocity, 0
नहीं होगी। तो ग्राफ ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, मतलब उसके बाद जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम में इक्वल ही चेंज होगी। जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होगी। सो दिस विल बी द ग्राफ ओ ए is equal to AC, that is initial velocity u, OD origin to final point B के सामने D बनेगा, this is V, BC is also V, and OC is equal to AE, that is time. Okay, so let us write the first equation. Acceleration, first equation of motion starts from acceleration. Acceleration अगर हम ग्राफ से निकालना चाहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ ग्राफ, एंड स्लोप ऑफ ग्राफ का क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर बाय बेस. स्लोप ऑफ ग्राफ का क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके, सो व्हाट विल बी दिस नाउ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. सो व्हाट विल परपेंडिकुलर बेस? परपेंडिकुलर इज राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, परपेंडिकुलर बेस राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं. ग्राफ से नीचे, ग्राफ के इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो राइट एंगल ट्रायंगल बने वो लेनी है आपने. सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. परपेंडिकुलर इज BE, बेस इज AE. परपेंडिकुलर BE, बेस इज AE लिया वो हमने टाइम है, दिस इज द टाइम. सो B की वैल्यू आ गई 80. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी हैव द कंप्लीट लाइन BC. BC को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, BE प्लस EC. BC इज इक्वल टू BE प्लस EC. BC की वैल्यू V है, हमने निकाल रखा पहले पूरे की वैल्यू, और BE वैल्यू ये रही 80 और EC U होता है इनिशियल वेलोसिटी. सो U पहले की 80 बाद में, सो दिस बिकम्स V इक्वल्स U प्लस 80. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is S equals ut plus half at square. S equals ut plus half at square is the second equation for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion, this is the second equation. Okay, so graph will be same. Graph will be same for three equations. First was for the first equation v is equal to u plus ut. दिस वॉज द ग्राफ. सेकेंड के लिए भी यही है, थर्ड के लिए भी यही रहेगा, बट मेथड चेंज होते जाएंगे. सो व्हाट इज एस हियर? एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ हमें निकालना पड़ता है. सो एस क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर ग्राफ. कैलकुलेटिंग एरिया अंडर ग्राफ. ओके, सो एरिया अंडर ग्राफ हमने निकालना है, तो जितना ग्राफ है उसके नीचे एरिया A से B, ग्राफ के नीचे के एरिया में ये भी आएगा अंडर. टाइम और ग्राफ के बीच का जितना भी एरिया बनता है, मतलब ये एरिया सारा, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना एरिया है. सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, देयर आर टू शेप्स, वन इज ट्रायंगल, अनदर इज रेक्टेंगल. So what will be this? S is equal to displacement, area under graph, area of rectangle. जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, रेक्टेंगल है OAEC, प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नेम्ड एज AEB. नेम्ड एज AEB. हमें दो शेप हैं ग्राफ से नीचे और टाइम एक्सिस के बीच में, इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है. टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो ये इसका एरिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है. तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो व्हाट विल बी लेंथ? लेंथ विल बी दिस, OC और AE भी लिख सकते हैं हम. OC इनटू ब्रेथ इज OA. breadth is OA. OC is the length and OA will be breadth. Okay, length rectangle के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ इनटू बेस, बेस ये इसका AE, सॉरी AE, एंड हाइट जो इसका परपेंडिकुलर है दैट इज BE.
परपेंडिकुलर से ट्रायंगल का लेना, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये पूरा मत लेना, बी ई लेना हमने। सो पुटिंग द वैल्यूज ओ सी है टी है इंटू ओ ए यू है प्लस हाफ ए ई टाइम, और व्हाट इज बी ई? अब बी यहाँ है नहीं, लेकिन बी अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट किया था फ्रॉम, यहाँ बी एज इट इज रहने दो, फ्रॉम इससे ले लो आप एक्सेलरेशन, फ्रॉम एक्सेलरेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। हमने स्लोप का फॉर्मूला भी पीछे किया भी था, परपेंडिकुलर इज बी ई एंड बेस इज ए ई, बी और परपेंडिकुलर ए की वैल्यू टी है, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया है ये। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बी ई वैल्यू हो जाएगा ए टी, बी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इंटू टी। सो बी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज एस यू इंटू टी, दैट इज यू टी प्लस हाफ इंटू टी, ये तो ये था ही, बी की जगह ए टी और पुट कर दिया। सो इट विल बिकम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक ए रहा और दो टी हो गए, तो ये टी का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। सो इट विल बिकम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Look at again what we have to do, we have to derive the second equation of motion, that is s equals ut plus half at square. Okay, so what will be next? By graphical method, s is displacement, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ ये बना हुआ आपके पास, ये भी, इसका अंडर एरिया, दो शेप्स है, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, दोनों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। पुटिंग द वैल्यू OCT, OU, AT एंड BE फ्रॉम द एक्सेलरेशन, दैट इज AT। तो B की वैल्यू इसमें पुट करो, इट बिकम्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू S। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। Okay, so now move on to the third equation of motion. So what is the third equation of motion? That is v square equals u square plus 2as. Third equation of motion graphical method से ड्राइव करते हैं। It will start from again, that is distance और displacement is area under graph. एरिया अंडर ग्राफ में अब आपने क्या करना है? आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लो, ये पूरा ए की शेप ले लो, अब ए ई इसमें से ना लो, दो पार्ट की बजाय एक पार्ट का एरिया ले लो पूरा। व्हाट इज वन पार्ट? इज दिस ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम दिख रही होगी आपको ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेपीजियम नाउ? OABC। Two sides are parallel to one another and two sides are not, front वाली जो sides हैं। So area of trapezium का फॉर्मूला sum of two parallel sides by 2 into height, sum of two parallel sides by 2 into height. So what will be the sum of two parallel sides? इस ट्रेपीजियम में दो parallel side कौन कौन सी हैं? ये परपेंडिकुलर हमने पहले ही ले रखा। सो इस ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड कौन सी है? एक तो OA है, एक BC बनेगी। ओके, सो BC प्लस OA, दीज आर द टू पैरेलल साइड्स, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों नहीं है पैरेलल ऐसे। सो BC प्लस OA बाय में 2 इनटू हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। जो दो पैरेलल साइड है, एक ही होगी एक ही होगी, इनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनेगा OC। स्ट्रेट डिस्टेंस लेना होता है OC। पुटिंग द वैल्यू BC इज V, OA इज U by 2 here into OC is time, OC is time। तो हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, यूजिंग V equals U plus AT। यहां से अगर मैं इसको v माइनस यू इक्वल टू AT कर सकता हूं, u उधर प्लस का था, इधर आके क्या हो गया? माइनस। सो क्या v माइनस यू बाय a हो सकता है?
टी और ए उधर मल्टीप्लाई है, टी को उधर ही छोड़ दिया, ए उधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो क्या बन गया, टी की वैल्यू v माइनस यू बाय में a, क्या बने v माइनस यू बाय में a इज द वैल्यू ऑफ 2। पुट इन इक्वेशन 1, इस जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई यहाँ पे इसमें पुट कर दो। ओके, सो पुट इन इक्वेशन 1, सो व्हाट इट विल बिकम, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 तो पहले ही था ये, इनटू था t, t की वैल्यू ये जगह पुट कर देंगे, v माइनस यू बाय a हो जाएगा, v माइनस यू बाय a, दोनों मल्टीप्लाई है नीचे, ये 2a मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, क्या क्या बच गया ऊपर, v प्लस यू एंड v माइनस यू। सो इट विल बिकम a प्लस b इंटू a माइनस b, आइडेंटिटी a plus b into a minus b is a square minus b square. So here a is b square minus u square बन जाएगा ऊपर, आइडेंटिटी a plus b into a plus b है रहा, a minus b है रहा, तो a plus b into a minus b that is a square minus b square, तो v square minus u square by 2a इधर लेके आओ, it will become 2as is equal to v square minus u square। ओके, तो मैं लेफ्ट वाली राइट में लिख रहा हूँ, राइट वाली लेफ्ट में लिख रहा हूँ, पहले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेफ्ट वाली राइट में लिख दी, राइट वाली लेफ्ट साइड एक ही बात है, इधर माइनस u स्क्वायर है उधर जाके प्लस u स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बिकम v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें आपने करना क्या है कि शेप ले लेनी है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू हाइट। पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सी हैं, एक तो BC है पूरी और O है इसके पैरेलल है, सिर्फ आपने ट्रेपेजियम की लेनी है, ये पूरी साइड नहीं आएगी, इतनी लेनी है क्योंकि ट्रेपेजियम यहाँ से बनती है, ग्राफ के नीचे नीचे की ट्रेपेजियम होती है, इनटू हाइट OC, BC की वैल्यू v, OA की u बाय 2 और OC टाइम था। फ्रॉम द फर्स्ट जो हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन है उससे हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, u इधर माइनस लेके आए, ये डिवाइड कर दिया टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सो s इज इक्वल टू v प्लस u बाय 2 टाइम v माइनस u बाय a, सो बेस इज 2a, a प्लस b इंटू a माइनस b, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, दिस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, u स्क्वायर उधर ले गए प्लस का हो गया, सो इट विल बिकम v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो टुडे वी हैव ड्राइव्ड द 3 equations for uniformly accelerated motion. Do the practice of the derivations at home and do prepare the notes of the equations and send your work at my personal WhatsApp wall. In the next lecture we will do the numerical based on these equations. So first of all learn all the 3 equations, that is v equals u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third is v square minus u square is equal to 2s, v square is equal to u square plus 2s. Okay, so thanks and have a nice day.